خدا کو آزمایا ہے اور میں نے دیکھا حقیقت میں خدا واقعی میرے ساتھ بڑا کام کرتا ہے. جب میں اس نوکری پہ لگا تھا 1.5 لاکھ کا قرضہ تھا میرے ساتھ. پھر بھی خدا نے مجھے کہا کام کر میرا کام کر, اور سارا قرضہ خدا نے ایک جھٹکے میں اتار دیا. کوئی اسکول 1 ماہ کی فیس نہیں چھوڑتا, اس کی 16 ماہ کی فیس 8-9 ماہ کی فیس تھی. اور میرے دوست جس کو میں نے کبھی 1988 میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا, 87 میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے, چینج ہو گئے. اس نے امریکہ سے مجھے فون کیا, اس نے میرے لیے سارا انتظام کیا. خدا نے اس کو کال کیا, اس نے کہا میں دعا کر رہا ہوں, خدا مجھے بتا رہا ہے کہ آپ مشکل میں ہو, بتاؤ مجھے آپ کی پریشانی کیا. میں نے کوئی پریشانی نہیں ہے, خدا کا شکر ہے میں جاب پہ لاتی ہوں. اس نے کہا نہیں خدا کا دو مجھے گائڈ کر, میں دعا میں بیٹھا ہوں, مجھے بتا کتنا قرضہ تیرے اوپر. یہ سب خدا نے کیا. وہ میرے لیے کر سکتے ہیں, کیا آپ کے لیے نہیں کر سکتے؟ صرف ہمیں اس کو آزمانے کی ضرورت. دریچے کھلے آسمان کے کرتے تھے. ہماری فریج خراب تھی, مشینیں خراب تھی, ہر چیز خراب تھی. خدا نے فریج میں تھی, خدا نے مشینیں بھی صحیح کروا دی, سب کچھ چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا سب کچھ وہ کہتے دیکھ کے آزما کے تھے. اور خدا مجھے سن کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. آئے ہم متی کے انجیل اس کا 23 باب اس کی 23 آیت دیکھیں کہ نئے نامے میں خدا و یسوع کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم اسے دیتے ہیں 23 میتھیو چیپٹر 23 ورس 23 متی کے انجیل اس کا 23 باب اس کی 23 آیت. میتھیو چیپٹر 23 ورس 23 جی پڑھیں گے. پڑھو. اے ریاکار فقیروں اور فریسیوں, تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دائیکی دیتے ہو, پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا. کس کو چھوڑ دیا؟ ایمان کو چھوڑ دیا. یہ پیسے پہ دائیوں کی ایمان ہے نا, ایمان رکھیں گے نا کہ اگر میں اتنے پیسے لگا دوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا. تو دے کے آزما کے دیکھیں. آپ کا گھر خدا نے چلانا, آپ نے نہیں چلانا. یہ جھوٹ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر چلا رہے ہیں. پورا خاندان کمائی کرتا ہے پھر بھی پوری نہیں پڑتی ہے, تو پھر کون چلاتا ہے گھر؟ خدا. جب پورا خاندان کا بیٹھا ہوتا ہے تب بھی گزارا ہو رہا ہوتا ہے, اور جب پورا خاندان کما رہا ہوتا ہے تب بھی ویسے گزارا ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ میں چلا رہا ہوں, خدا چلا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں 18ویں عبادت کروانے کو جا رہے ہیں. ہم سب کو پتا ہم کیا کیا دیتے ہیں, ہم سب کو پتا ہے ہم اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, کون کیا دیتا ہے. لیکن پروگرام ہوتا ہے, پروگرام خدا کرتا ہے, برکت خدا دیتا ہے. میں کچھ نہیں کرتا ہوں, خدا کرتا ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہوتا, میں اپنا گزارا کیسے کرتا ہوں, لیکن خدا کرتا ہے. وہ سارا خدا کا انتظام ہے, اس کا کام ہے. ابھی بھی میں کچھ دنوں سے دعا کر رہا ہوں, خدا مجھے دکھا رہے ہیں. یہاں تک کہ سیلری والوں نے بھی کہہ دیا کہ سیلری منگل تک جائے گی. شاید بدھ کو آئے, ابھی تک آلریڈی نہیں ہوا, تو پرسوں والے تھے. خدا نے کہا یہ میرا کام ہے, ڈونٹ وری, میں کروں گا, پریشان نہ ہو, ایمان رکھ بس. لیکن خدا میں میرا ایمان ہے. مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے کہ تو کرے گا جیسے پہلے کرتا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں کی بورڈ کا خدا نے سامنے رویا دکھا دی. کی بورڈ لے کے آنا پتا نہیں ہے, میں آپ پاس جا کے کی بورڈ بھی دیکھ رہے ہیں 50,000 کا. اس نے پکس بھیجی ہے 50 سے 80,000 کا. ہم کی بورڈ بھی سب کو میں دکھانے کا 80 والا لے لیں, پیسہ کوئی نہیں ہے. کی بورڈ بھی سامنے آ گیا. یہ خدا دکھا رہے, اس نے کرنا, میں نے نہیں کرنا, کیونکہ میری اوقات نہیں ہے. صرف ہم نے ایمان رکھنا ہے. اور خدا یسوع سے کیا فرماتے ہیں؟ لازم تھا
क्या लाजिम था कि ये भी करते और वो भी नाम छोड़ते, उसको न छोड़ते। वो भी 2 किया, पुदीने पर, सौंफ पर, फसल पर, हर चीज पर। और ये ईमान भी रखो, अपनी इनकम में से, अपने वक्त में से भी दाइए की दो, अपनी सैलरी में से भी दाइए की दो। मेरे जीसो पास्टर पवेश को कुछ हम सब जानते हैं। वो कहते जब मैंने सोचा, मैं भी ईमानदार हुआ था, मैंने भी ईमानदार होके जब मैंने सुना तो मैंने फैसला कर लिया। बीवी से कहा, और स्टाफ नर्स से, कहता मैंने कहा आपकी जितनी इनकम है, मेरी जितनी सैलरी है, इकट्ठी करें, ये बनती है। ये कि हम इस दफा पहली तारीख को जब सैलरी आगे देखे आनी चर्च में लेनी। कहते भी हमने सोचा, तीसरे दिन मुझे मैसेज आया, आपकी इतनी इंक्रीमेंट लग गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता हमने सोचा कि ये उस ईमान की वजह से हमारी इंक्रीमेंट लगी है, ये भी हमने घर नहीं रखनी। कहता हमने वो भी इंक्रीमेंट ली, दाइए की रग थैली में लिफाफे में डाली थी, और उस इंक्रीमेंट से अपने पास साहब के बुआ जी के कपड़े लिए, एक बुके लिया, उनके घर गए, ये दाइए की है। और ये दाइए की का फैसला करने के लिए, उस ईमान के लिए खुदा ने हमें अजर दिया है, तो ये खुदा ने हमें गिफ्ट दिया है, ये आप दोनों के लिए। हालेलुया। जब उन्होंने सोच लिया, आज भी वो कहते हैं मुझे कोई ये नहीं आती। वो पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं, पूरे पंजाब में फिरते हैं, अपने किराए पे जाते हैं, और इस वक्त वो छाए हुए। फेसबुक पे देखें, वो जगह जगह पे जाकर कलाम सुना रहे, टीच कर रहे हैं। क्यों? लेकिन इनका ईमान खुदा पर। जब हम भी ईमान रखेंगे, फेथ रखेंगे कि जब मैं दे दूंगा तो खुदा मेरे लिए दरीचे खोलेगा, ईमान रखेंगे तो सब कुछ होगा। खुदा यीशु फरमाते हैं जो ईमान रखता है उसके लिए सब हो जाता है, लेकिन जो शक करता है उसके लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि शक समंदर की लहर की मानद है, जो आता है वो सब कुछ बहा के लेते हैं। खुदा यीशु भी यही फरमाते हैं, पुराना नाम भी यही फरमाता है, पूरी बाइबल यही फरमाती है। गौर करें, समझे इस बात को, और इस पर अमल करने की कोशिश करें। खुदा हम सबको इस पाक कलाम की पढ़े, उसमें जाने की से बरकत बख्शे, इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने, मैंने तो बहुत ज्यादा बरकत पाई है। हालेलुया। मैंने भी अपना हाथ दिखाए, मुझे नहीं खुदा को हाथ दिखाए, किस किस ने बरकत पाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे पता चल रहा कि भाई ने नहीं बरकत पाई, भाई ने नहीं हाथ दिखाया। मैसेज कर, हाँ, वेरी गुड। अच्छी बात है मान लेना कि चीजों को मैंने सुना ही नहीं। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जब हम ईमान के साथ कुछ करने की कोशिश करते तो वो हो जाता है ईमान के साथ। तो आज हमने दैयकी पर मैसेज सुना है कि हम आजमा कर देखें। हम कई दफा अपने दोस्तों को रुपया पैसा दे देते, कोई चीज दे देते अपने आजमाने के लिए, तो वो जब हमें वापस नहीं लौटाते, असं दफा खड़े कर भाई आज तो बाद में किसने देने पैसे, मैं तो वापस नहीं कर रहा। खुदा कहता कि मैनू तो तू दे के लिए। अच्छा, ये बात भी बड़ी बात सुनने वाली है। हम खुदा को देते हैं कि वाकई के खादमों को देते हैं, इन बातों को सीखने के लिए हमें जरूरत है। जखीरा खाना इस्तेमाल, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा, जखीरा खाना। जखीरा खाना किस जगह पर है? जब हैकल में लोग जाया करते थे तो बहुत दूर दूर से लोग अपने चीजें लेकर जाते थे। हम गांव में देखते हैं, आज रात बल्कि सुबह भी बात कर रहे थे कि मेरी कनेक्शन हो गई है, 10वें महीने में कनेक्शन होती थी, तो बहुत बहुत दूर से लोग आते थे, दूसरे चकों से, दूसरे इलाकों से आज जाते थे। आज हमारे घरों में ही चर्च है। मैं कभी कभी सोचता हूं हम किस जगह पर जखीरा खाना हमें देने की जरूरत है।
पर जब जब जो हैकल मखसूस की गई है, जगह मखसूस की गई है, जब उस जगह पर जखीरा खाना है तो हमें जरूरत है कि हम उस जगह पर जखीरा खाना में अपने तैयार की हदीयत, हम इनके लिए भी बात कर रहे हैं, हम दुआ भी करें कि खुदा आपके दिलों को उभारे, खुदा आपके दिलों को तैयार करे ताकि खुदा उनको आप देने वाले बने। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करें और अपने हदीयत खुदा के हजूर में पेश करें। हालेलुया, हालेलुया। वायर के साथ मिलकर हम दस्तावेज करें। वायर गुम हुई है, सोती गई है, पता नहीं 10 रुपये वादा नहीं पौने पड़ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोच पर गुम नहीं होना, खुदा के जोर में अपने आप को सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं, ये भी हमारा हदिया है। अच्छा, इसी बात पर हम गौर पहले बात करते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हमारे पास कितनी दाइया की बनती है? 2.5 घंटे। बेटी आती है बताइए, मैथ करते हो आप लोग? हाँ, निकाले निकाले, जल्दी जल्दी निकाले। क्या? 2.5 घंटे। 24 घंटे आपके दिन और रात है, इसमें से आपने दाइया की देनी है आपको खुदा को, तो कितने? 10% आपने देना है, तो आपने कितना वक्त खुदा को देना है? मैंने बार बार पूछ लिया था, अभी सभी से पूछना है, आप जल्दी जल्दी बताएं। 10 hours। 1 घंटे के 10 मिनट बने ना। हाय, ओह माय गॉड। 4 hour के 2 hours and half 30 minutes। ये सोचिए कि हमें जरूरत है सीखने की। मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं इसके बाद छोटी सी एक मीटिंग करूंगा कि उसमें आप डिसाइड करें कि आपने कितने गीत गाने, कितने जबूर गाने हैं, वो पहले लिख के रखें। बार बार नहीं रिपीट करना कि ये वो, आप तवज्जो नहीं देते। हमें आगाही मिलती है खुदा के खादिम को और मुझे। इस जगह पर जब हम मसले पर खड़े होते हैं तो सीधी जी गल दे, पंजाबी जी गाने के सानू लोह दे आसे दे नाल कुट पैंदी है, ये असी गल सही नहीं करांगे। लिहाज नहीं करता खुदा क्योंकि वो भी मेरा बाप है। जी असी रूहानी तौर पर अपने पिओ का नहीं ना हुक्म मानते तो फिर असली भी वो भी साढ़े लिहाज नहीं करेगा। जी एलिया 3.5 साल आसमान को बंद कर सकता है, तो जो उन्होंने दोबारा ने वो कह के खुलवा भी दिया सी, तो अज भी वही खादम है। लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत का की मतलब है कि साढ़े बगैर सी। नहीं ठीक है, मुझे चल नहीं आ जा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी है। आइए हम गीत गाएं और अपने हदीयत बड़े ध्यान के साथ, बड़े तवज्जो के साथ खुदा को दें। हालेलुया, हालेलुया। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का वसा चाहिए, तुझसे रूह का वसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का वसा चाहिए, तेरे रूह का वसा चाहिए।
हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बड़ी खूबसूरत बात है। अभी आप जब खुदा की प्रस्तुति गा रहे थे तो मैं एक बड़ा व्यू देख रहा था, खुदा की वजह देख रहा था। ये खुदा मुझे और मेरे खादम को जब हम खुदा के हुजूर में थे तो हम अपने हाथ बढ़ा रहे थे तो लोग स्लेन होना शुरू हो गए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और खुदा ने इतना बड़ा काम किया है कि खुदा की शुक्रगुजारी जिस लिहाज से भी की जाए वो काम है। इस प्रोग्राम में खुदा बड़ा जलाली काम करने वाला है और कोशिश करें जितने भी लोग हो सके तो रोजे में ठहरे, जितने घंटे आप ठहर सकते हैं और खुदा से कुव्वत मांगे कि खुदा इस दफा एक ऐसा काम कर कि लोग सुनकर तेरे नाम को चला देने के लिए। नहीं ये ना ले छोड़ने से हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को चला दें। मैं खुदा के अजीम खादम की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने उन्हें एक बड़ा विजन दिया। जिन जिन बातों में वो गुजर चुके हैं वो जब जब दोहराते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जितने भी खादम इन बातों को शेयर करते हैं उनकी गवाही सुनने वाली होती है और वो ऐसी पावरफुल गवाही होती है कि जो हमें जोड़ कर रख देती है। मैं खुदा के खास करके खादम को दावत देता हूं कि वो आए और हमारे लिए जो आज बरकत है वो हम तक रिसीव ट्रांसफर करें ताकि हम उसे रिसीव कर सकें। जब खुदा के बदन को और खून को लेने वाले हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करें। उस वक्त ग्रंथ के कलीसिया पर लिखा गया था, आज मुझे और आप सबके लिए लिखा गया है ताकि मैं और मेरा घराना बच जाए। और इसके बाद एक खास स्पेशल मेरी बेटी की भी दुआ है। मैं आप सबके साथ रखने वाला हूं कि हो सकता है कि उसके लिए पहले दुआ कीजिए या सेक्शन के बाद। वो खुद भी डिस्टर्ब है और मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है। वो आपके साथ में शेयर करने लगा हूं। क्या बात है कि वो उनके लिए एक रिश्ता आया बाहर से। वो कलाकाबाद के लोग हैं, बड़े कलाकाबाद के। अभी तक हमने किसी बेटे को नहीं देखा, ना उन्होंने देखा है। अभी किसी ने बात ही हमसे की है तो वो इतनी कंफ्यूज है। वो कह रही कि मैंने नहीं करवाना, आप खुद करवा ले, ये कर ले, वो कर ले, परेशान कर रही मामा को भी मुझे भी। तो मैं जब सुबह को भी मीटिंग के लिए तैयार था, लोग पैसा लगाकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ये करते हैं, पैसा लगाकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा एक अच्छा विजन हो, एक अच्छी सोच हो, अच्छा कमा सके, हमारा घर घराना खुशहाल हो। तो जब हम अपनी बेटी के लिए दुआ करेंगे तो उसके ज़हन को खुदा जो बेहतर करना चाहता है। मैं नहीं कहता कि खुदा की मर्जी है तो वो काम हो, मेरी नहीं, ना किसी लालच के लिए, ना किसी चीज और के लिए, बल्कि जो खुदा की मर्जी है वो काम हो। मैं अपने खादम को दाव देता हूं कि वो इस मीटिंग के आगाज से पहले ही, इस सेक्शन से पहले इसके लिए दुआ करें ताकि खुदा मुझे और आप सबको इन बातों के लिए तसल्ली दे। क्योंकि तसल्ली किसके पास है? मेरे खुदा के पास। हालेलुया, हालेलुया। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा के नाम में
खुदा हम अपनी बेटी को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। इस वक्त उसके लिए जो रिश्ता आया है वो खुदावन ये सारा सिलसिला जो तेरी तरफ से हुआ, किस तरह से खुदावन तूने उसको बेहतर किया, आज़ाद किया, और अब खुदावन तुझसे आगे बढ़ाना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है। अब उसके ज़हन में खुदावन जो भी परेशानी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो कंफ्यूजन है, तेरे यीशु मसीह के कादर नाम से चाहते हैं खत्म हो जाए। Yes. हालेलुया, हालेलुया, तो खुदावन पर सब के लिए भी खास दुआ करते हैं हालेलुया, खुदा जो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद है, उनकी रहनुमाई कर। Yes. खुदावन तेरी मर्जी को जानना चाहते हैं। यीशु के नाम से, खुदावन तेरी मर्जी यहाँ पर उनकी जिंदगी में जाहिर हो। हालेलुया, यीशु, तेरे कलाम में लिखा है तजर्बे से मालूम करते जाओ कि खुदावन को क्या पसंद है। हालेलुया, यीशु, खुदावन बंदा की रहनुमाई कर। उनके खुदा ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसके इंतहा में मौत की राह है। हम इंसान हैं लेकिन तू खुदा है। तो इंसान की मानत जाहिर सूरत में नहीं दिखता बल्कि दिल पर नजर करता है। उस बेटे के लिए खास दुआ करते हैं। अगर उस बेटी के लिए ठीक है, दुरुस्त है, तो खुदावन इस बेटी को भी उसके लिए तैयार कर, इसके माइंड को यीशु के नाम से, इसके ज़हन को उसके लिए तैयार कर। हालेलुया, यीशु के नाम से, तेरे यीशु नाम इसकी जिंदगी में काम करे हालेलुया, यीशु, और ये दोनों मिलकर खुदावन तुझ में आगे बढ़े यीशु तेरा शुक्र, और खुदावन की जिंदगी खुशहाल हो। इस सारे खानदान को तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ। शैतान जो भी कोशिशें करता है, इनकी खिदमत में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, उसकी तमाम चालों को तेरे पाकों की आग के स्पुर्द करता हूँ। यीशु के नाम से, इन तमाम चालों को खुदावन तेरे पाकों की आग के स्पुर्द करता हूँ, जल कर राख हो जाए। तेरा बंदा इस जिम्मेदारी से भी खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक वफादारी के साथ पूरा कर सके और प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। हम तेरी मर्जी को चाहते हैं। अपनी मर्जी को उस बेटी पर, अपने बंदा पर और बाजी पर जाहिर कर, और खुदावन इनको जो तेरी मर्जी है उसके लिए तैयार कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। सुना बख्शते। आमीन। बेटा माइक, हालेलुया, अभी हम इशारा दबाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज हम कोरिन्थुस की कलीसिया का खत नहीं पढ़ेंगे, आज हम इब्रानियों का खत पढ़ेंगे। हालेलुया, यहाँ पर खुदा का खादिम इब्रानियों का मुसन्निफ ये फरमाता है, इसका 13वां बाब की 10वीं से है, हमारी एक ऐसी कुर्बानगाह है जिसमें से क़यामत की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार कायन पाक मकान में गुनाह के कफारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से यीशु ने भी खुद उम्मत को अपने खून से पाक करने के लिए और दरवाजा के बाहर दुख उठाया। बस और उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम पर इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि जब काहिन कुर्बानी गुजराते थे तो बर्रे को बाहर भी चलाया जाता था ताकि वो गुनाह की कुर्बानी का सबब बने, उसका वसीला बने, और उसके वसीला से गुनाह की कुर्बानी, गुनाह की माफी मिले। और खुदा यीशु मसीह को भी इसी तरह जलील किया गया, किसके लिए? हमारे लिए। आज हम जब इशारे वाले में शामिल होते हैं, हम उस याद को मनाते हैं जब हमारा खुदा यीशु मसीह मेरे और आप सब के लिए सलीब पर चढ़ गया। उसने कोड़े खाए, दुख बर्दाश्त किया, और उसने, बेटा मैं इधर बात कर रहा हूँ, उसे छोड़ दे,
दुख बर्दाश्त किए, कोड़े खाए और कांटों का ताज सर पे पहना, सलीब पर मर गया। और आज हम उसके जी उठने की खुशी में इस ईद को मनाते हैं। और करंतुस की कलीसिया को पौलुस फरमाता है कि खुदा से मुझे ये बात पहुंची है और मैं तुमको पहुंचाऊं कि खुदावन जब प्याला लेता है, जब रोटी लेता है, पेश करता है, तो ये रोटी उसके बदन के मुशाबे है और ये शीरा उसके खून के मुशाबे है। और खुदावन यीशु से फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं आ जाता मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करते रहना। जब तक खुदावन यीशु से नहीं आ जाता, तो जब उसने आना है तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तैयार कैसे करना है? उसके खून और गोश्त में शामिल होगा। खुदा यीशु से फरमाते हैं जो मेरा खून पीता है और जो मेरा गोश्त खाता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। तो हमें अपनी हमेशा की जिंदगी को कायम रखना है। अगर कोई वजह है, कोई गफलत है, कोई गुनाह जिंदगी में है या हम अभी तक निजात से गाफिल हैं, तो हम इस बात को अपनी जिंदगी में लें, निजात हासिल करें और खुदा की मेज में शामिल हो। आए हम छोटी छोटी दुआ करेंगे, एक एक दो दो लफ्जों में शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावन ने मेरे लिए अपनी जान दी है तो मैं इस मेज में शामिल हो सकता हूँ, शामिल हो सकता हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। एक एक दो दो जुमलों में। खुदावन में जिंदास, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी लान के अपने बकरों और छतरों की कुर्बानियों से मेरी छुटकारा ला। आया खुदावन, तूने ऐन वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। आया खुदावन, ये तेरी कुर्बानी मुझे याद है, ये तेरा बदल जो तू आया खुदावन चक्की में पीसा गया, आटा बना गंदम आया खुदावन, तेरा लहू आया खुदावन हमारे लिए बहाया गया। जैसे जैसे हम हाथ बढ़ाते हैं आया खुदावन सूरत पर तूने हमारे और पुलिस के दरमियान में दस्तरखान बिछा। मांग तेरे प्यारे बेटे अपने को के नाम। मेरे गांव के बाद मैं भी तेरा शुक्र करती हूँ तेरी इस मेज के लिए जो खुदावन तुझे मेरे खुदावंद शैतान के रूबरू बिछाई है, देखो मैं इसमें हाथ बढ़ा के खा पी सकती हूँ। खुदावंद जब तक फिर यीशु मसीह दोबारा ना आए तब तक इसमें से खा पी सकती हूँ। तेरी इस मेज के लिए और तेरे बेटे के बेशबहा कीमती लहू के बहाए जाने के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मीठे नाम के वसीला से, आमीन। कदीस जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार कि तूने को कांटों का ताज और कोड़े खाए हमारे लिए या पाक खुदा, और तूने हमें छुटकारा दिया या पाक खुदा, ताकि हम आजादी से अपनी जिंदगी को गुजार सके या पाक खुदा। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें हर लिहाज से, हर तरीके से हमें आजाद किया है या पाक खुदा। मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार या पाक खुदा। हम तेरी इस कुर्बानी को यही यादगिरी में करते रहे या पाक खुदा, और अपने गुनाहों को या पाक खुदा माफी के मुताबिक करें या पाक खुदा, और हम तुझ में कायम रहने वाले बंदे को सुनना और कबूल। हम बाकी शुक्रगुजारी दिल दिल में करते रहेंगे। हम मेज में शामिल होंगे। जिस रात खुदा यूसुफ से पकड़वाए जाने को थे, उन्होंने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और रोटी के बाद उसने प्याला भी लिया और शागिर्दों को ये कहकर दिया कि ये मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो जब तक मैं ना आऊँ। तो हम इस रोटी और शीरे के लिए बरकत के लिए पास से मिलकर दुआ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। मेरे बाप की हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की तेरी इस प्यारी मोहब्बत के लिए, आज के तेरे शुक्रगुजारी करते हैं इन लम्हों के लिए। मैं खुदा बिरादना सा खादम होते हुए तेरी हजूर में पेश हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सभी आने वाले लोगों के लिए। खुदा जितने खुदा इस मेज पर अपना हाथ बढ़ाएं, खुदा उनकी जिंदगियों को खुदा तो बाइज्जत चेक करना, खुदा छूना, उन्हें ब्लेस करना खुदा। और खुदा जितने लोग अभी तक तैयार नहीं, उन्हें यीशु के नाम से कहता हूँ कि वो तैयार है और अपने आप को खुदा तेरे हुजूर में आए
और आजमाए और आजमा कर खुदा तेरे नाम को चला दे सके। खुदा शुक्रगुजार हूँ अपने खादम के लिए जो खुदा तो हमेशा के लिए तो अपने खादमों को तैयार करता है ताकि वो ऐसे मेज सजा सके और तेरे नाम को चला दे सके। सभी खुदा इस खुराक पर तेरी बरकत का मांगता हूँ। यीशु तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जब हम खुदा तेरे खून को तेरे बदन को ले तो इससे मेरी जिंदगी को तकवी मिले, हिम्मत मिले, ताकत मिले। मांग लेते हैं मसीह यीशु की वसीला से। हालेलुया। जो तैयार है वो सामने आए। हालेलुया। लाइनें आए और तैयार होकर आए और अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करें। यह आपके लिए मसीह का बदन है। ऐसे नहीं प्यार नहीं जो कुछ लगे तेरी खातिर वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू। यार तू भी क्या कहते उससे प्यार नहीं क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू कर याद जरा वो समा यीशु गिरता यहाँ था वहाँ कर याद जरा वो समा यीशु गिरता यहाँ था वहाँ या बढ़ के सलीब उठाए तू या कहते उससे प्यार नहीं जो कुछ लगे तेरी खातिर क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। अपने घुटनों के बल हो जाए और खुदा को सजदा करें और कहें कि खुदा बाप मैंने तेरे बदन को मैंने तेरे खून को लिया है ताकि मैं और मेरा घराना नजात पाए। नजात सिर्फ तेरे यीशु नाम में है जिसने मेरे लिए अपना खून का कतरा कतरा बहा दिया और जिसके वसीले से आज मैं जिंदगी पाई है तो जिंदगी पाई है। हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करें। आपके पास टाइम है। खुदा आपको चाहता है कि तुम मेरे हजूर में आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा का तेरी शुक्रगुजारी करते हैं Hallelujah. और तेरे नाम को चला देते हैं। Yes, Lord. हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. आज का सारा ऑनर मेरे यीशु नाम है। All the glory सारा to God. चीजें सारा जलाल सारी इज्जत यीशु नाम को दी। Yes, Lord. All the glory. आज की आखिरी दुआ हम खुदा के खादम के साथ मिलकर सारी बख्शिश के सारे कलाम के लिए सारे हदीये के लिए सारी बरकत के लिए खुदा से बरकत मांगेंगे। उससे पहले कोई अनाउंसमेंट है तो जरूर आप अदा करें। हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि हम दुआ करें, अनाउंसमेंट एक तो ये है कि हर इतवार की इबादत का टाइम 9 से 11 बजे तक है और मंगल को शाम 7 से 8:30 तक इबादत होती है रेगुलर। लेकिन परसों जब हम ये हमारी बड़ी इबादत गली में होगी वो
7 से 10 बजे तक होगी। तो उसके लिए खुद भी आएँ, औरों को भी लेकर आएँ, और खुदा जो कुछ भी आपको तौफीक दे आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें, फाइनेंशियल तौर पर, फिजिकली, बदनी तौर पर उसमें शामिल हो, और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आगे बढ़े, ताकि खुदा का काम आगे बढ़े और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। इसके अलावा जुमेरात को बैंडों की बात 4 बजे होती है, और हफ्ते को बच्चों का संडे स्कूल होता है। अगले महीने दिसंबर में 13 तारीख को हमारी बड़ी बात होगी, और 13 तारीख को ही बच्चों का प्रोग्राम होगा। उसमें प्रैक्टिस शुरू करवानी है। हफ्ते से, आने वाले हफ्ते से हम प्रैक्टिस शुरू करवाएंगे, ताकि 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे तैयार भी हो सके, और बच्चों के लिए गिफ्ट भी लाने हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि खुदा अगर ऐसा मुमकिन करे तो हम कीबोर्ड का भी इंतजाम कर सके। इसी बात के लिए मैंने 2-3 लोगों से रिक्वेस्ट की है, अगर कोई कीबोर्ड लेके आ गया, मे भी आज शाम तक, और कल, आज 2 दिन हैं हमारे पास प्रैक्टिस के, फिर हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। वरना वैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, कीबोर्ड के साथ भी हम गाएंगे। और अगली बात से पहले अगर खुदा की मर्जी हुई तो अपने कीबोर्ड के साथ हम प्रस्तुत भी करेंगे, और अपने कीबोर्ड के साथ इबादत करेंगे। क्योंकि जब खुदा हमें कुछ दिखाता है तो उसका इंतजाम भी वो खुद करता है, क्योंकि ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये खुदा का काम है। और खुदा ही जब रोया देता है कि मैं ये करने को हूँ तो वो फिर करता है। सिर्फ हमें ईमान रखना है, और खुदा हमें कीबोर्ड मुहैया करेगा। और बेटी के लिए मैंने टीचर से बात की है, आप बेटी को शौक था कीबोर्ड सीखने का, तो हम जरूर उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा कीबोर्ड सीखने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है जब वो आएगा, किस बेटी को? बेटी इरम को, ये क्वायर को लीड भी करेंगी, और साथ में नाम अच्छा और गाने में बहुत लीड भी करेंगी और गाएंगी भी, और बच्चियों को भी तैयार करेंगी। तो ये बेसिक जो हमारी टीम है, एक बैग फौजी है, और ये 4 ये लोग हैं, 5 बेटियों की टीम है। तो खुदा करे कि बेटा अलीशा छोटा है, वो भी तैयार हो, ताकि वो भी इनके साथ खड़ा हुआ करे, ताकि हमारे साथ 2-3 बच्चे भी हों, ताकि हमारी आवाज़ें मिक्स हो, तो फिर ज़्यादा बंदा आगे बढ़ता है। तो हम इन सब बातों के लिए दुआ करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, कोई दरख्वास्त है तो फिर हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। हाँ, बेटी ने कल बताया था कि उन्होंने बाइक ली है, उसकी हम शुक्रगुजारी भी करेंगे। खुदावन इस बाइक को भी ब्लेस करे, और जहाँ जहाँ ये इस बाइक के जरिए से जाते हैं, खुदा इनको बाइक हिफाजत रखे, और उस बाइक को अपने पाक लहू में छुपाए रखे। आए हम दुआ करें। और जितने भी ऑनलाइन फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं, उन सबसे भी गुजारिश है कि अपनी आंखों को बंद करें, ताकि हम सब मिलकर दुआ करें, और खुदावन अपने जलाल को जाहिर करें, और इन तमाम प्रोग्राम्स को अपनी दुआ में याद रखें, और इन तमाम बातों को खुदा के सामने रखें, ताकि खुदा सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक पाए तकमील तक पहुंचाए। आए हम दुआ करें। प्यारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस वक्त के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी इबादत के लिए, सारे कलाम के लिए, कलाम की बरकत के लिए, तेरी प्रस्तुत के लिए, खास तौर पर बेटी इलम के लिए, बेटे वकास के लिए, जिनको काफी दूर से खुदावंद यहाँ पर ले आया, और वो यहाँ पर आए, उन्होंने प्रस्तुत की। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद की बाइक के लिए तेरी खास शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदावंद ने उनको बख्शी है, जो उनके लिए एक मुश्किल वक्त था कि वो बाइक के बगैर उनके लिए आना मुश्किल था, और वो प्रस्तुत से रुक रही थी। खुदावंद ने उनके लिए एक जरिया मुहैया किया है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ उस जरिए के लिए, और खुदावंद इस बाइक को तेरे पाक लहू में डिप करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस के नाम से उस बाइक को ब्लेस करता हूँ, ताकि ये बच्चे उस पर जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी आए, खुदावंद वो बाइक इनको बाहिफाजत पहुँचाए, और तेरे कंट्रोल में रहे, वो नहीं बल्कि तेरा पाक उनको ड्राइव करे। और खुदावंद हर तरह से उसकी हिफाजत करना, उस बाइक के चारों तरफ तेरे पाक फरिश्तों का प्यारा लगा रहे, और इनके चारों तरफ तेरे पाक लहू की बाढ़ खींच देते हैं, ताकि सब कहीं भी जाए बाहिफाजत जाएं, बाहिफाजत आए, और ये तुझसे बरकत को रिसीव करें। इस तरह खुदावंद आज की सारी आदि नजाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है। अब आप इसको कबूल फरमा, इसको अपने इलाही खजाने में जमा कर, और अपने लोगों की तमाम जरूरियात को अपने इलाही खजाने से पूरा कर।
कारोबार में, खाने पीने पे, रोजी रोटी में तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा जितने ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, फेसबुक पर हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनको भी बरकत दे, ताकि खुदा वो भी अगर किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, तेरे यीशु मसीह के नाम से वो आजाद किए जाएं और तेरा पाक लहू उनकी जिंदगी में काम करे। जो यहाँ पर मौजूद है उनके तेरी बरकत चाहता हूँ। आज की सारी बरकत, आज के सारे कलाम की वजह से जो हमें मिली है उसको हम अपने साथ लेकर जाएं। हम खाली हाथ ना लौटें, बल्कि सारी बरकत अपने साथ लेकर जाएं। आने वाले मंगल को, परसों जब 8 तारीख को हमारी बड़ी इबादत है, हमारा 17वां क्रूसेड है। खुदा उस क्रूसेड में तेरी मौजूदगी चाहते हैं, तेरा मसा चाहते हैं, तेरी अनॉइंटिंग चाहते हैं, ताकि खुदावंद सब कुछ अच्छे से हो। खुदा 2 लोगों से बात हुई है कीबोर्ड के हवाले से। खुदा मुमकिन कर उनमें से कोई एक हमारे साथ शामिल हो सके और हम अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सके और खुदावंद वो प्रस्तुति पसंद आए। और अगले प्रोग्राम से पहले अगर तेरी मर्जी हो तो खुदावंद का मुमकिन कर, हमें ऐसे ज़राए मुहैया कर कि खुदावंद हम वो कीबोर्ड परचेज कर सकें और खुदावंद उस कीबोर्ड पर अपनी कॉल को तैयार कर सकें और तेरी प्रस्तुति अच्छे तरीके से हो सके। खुदावंद तुम सबके साथ हो, हम सबकी बड़ी रहनुमाई कर, तुम सबकी बड़ी मदद करना। प्रोग्राम में तेरा मसा चाहते हैं, सारे खर्चात को, सारी इंतजामिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तमाम इंतजामात को तेरे कंट्रोल में दे देते हैं। लिखते मेरे पासी को, अपने आप को, तमाम गैदरिंग को तेरे पाक लहू में छिपा देते हैं। सब पर तेरा फजल चाहते हैं। आने वाले मेहमानों को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। तो हर तरह की तमाम परेशानियों से, हर तरह की आजमाइशों से, हर तरह से ब्लिस के कंडों से आजाद करके उनको यहाँ पर ले आना, ताकि सब लोग यहाँ पर आकर तेरे हुजूर से बरकत को रिसीव करें और तेरा नाम इज्जत जलाल पाए। और खुदा सारा मौसम बेहतर रहे, बिजली का सिस्टम बेहतर रहे, ताकि अच्छे तरीके के साथ हम तेरी बात कर सकें। शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर। दुआ को सुन कबूल फरमा। मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के सिला से, आमीन। हम सब दुआ पाने में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज हमें बख्शे, और जिस तरह हमने अपने कर्ज को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसिया के साथ, और जितने भी अजीज बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं या फेसबुक पे ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, उन सब पर अब से लेके हमेशा 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 तक होता रहे, आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। Bapak Ibu,